Good morning, students. My name is Dr. Shipali Daya from Gurgaon, and our subject mentor is Mrs. Anjul Singla from SCRT Gurgaon. Today we'll do chemistry class 11 topic hydrogen part 4. This will include hydrides, water, heavy water, hydrogen peroxide, and hydrogen as a fuel. What are hydrides? Binary compounds of elements with hydrogen are known as hydrides. Binary means two. टू एलिमेंट्स जिसमें से वन एलिमेंट क्या है हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन वो हमारा बनाता है हाइड्राइड. Now we have to classify the hydrides because there are many hydrides. So we classify them into three parts. The very first is ionic or saline. The second is covalent or molecular. The third is metallic or interstitial hydrides. Fine. जो हमारे आयनिक और सेलाइन हाइड्राइड्स हैं बेटा वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ बनते हैं. फाइन. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा हाइड्राइड है H माइनस स्टेट है तो जो वो बाइंड करेगा उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ बाइंड करेगा और उससे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हमारे कौन से हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स. फाइन. तो जो आयनिक बॉन्ड बनना है वो कब बनेगा जब एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. हाइड्राइड इज नेगेटिव. So S block elements mean to say the first group and the second group ionic hydrides बनाते हैं. Fine. Next is the covalent or molecular hydrides. ये हमारे P block elements बनाते हैं. P block elements mean to say from 13 to 17. 18 is inert gas. Fine. तो covalent means only for the sharing of electrons जो बनेगा वो किसके साथ बन रहा है P block elements के साथ. इसको हमने आगे भी क्लासिफाई करना है. We'll read it further. One is electron deficient, the other is electron precise, and the next is electron rich covalent hydrides. Fine. These are the some of the examples that I want to show you. इसको डिटेल में आगे करते हैं. The third type is metallic or interstitial. Metallic mean to say metal, right? अब हमारे पास S ब्लॉक के तो आयनिक बन गए, P के कोवलेंट बन गए. मेटेलिक बॉन्डिंग कहाँ होगी जो हमारा D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स रह गए. फाइन. तो D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स का साइज इतना बड़ा है द इंटरस्पीशियल स्पेसेस जो है वो हाइड्राइड्स ऑक्युपाई कर लेते हैं. फाइन. तो इंटरस्टिशियल्स मींस इन बिटवीन जो वेकेंट वॉइड्स हैं हमारे मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स के बीच में वो कौन ऑक्युपाई कर देता है hydride, and therefore they are also known as interstitial hydrides. Fine. Okay. Now moving to next that will tell you in detail. Okay. Now this is the slide where I want to discuss the last slide more further. अभी मैंने आपको बताया कि आयनिक कोवलेंट एंड मेटेलिक थ्री काइंड्स के हमारे हाइड्राइड्स हैं. फाइन. आयनिक कब बनते हैं जब हमारा हाइड्राइड्स फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप एलिमेंट्स के साथ बनता है. फाइन. अब हमारे पास जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर व्हाट वही सोडियम पोटेशियम वाला. नेक्स्ट इज बेरिलियम मैग्नीशियम एंड ऑल, right? Mean to say plus and plus 2 they are more electropositive in nature. तो जो bond बनेगा that will be ionic in nature, right? Exception यहाँ पर है for lithium, beryllium and magnesium like lighter elements they form somewhat covalent bond. Mean to say they have the covalent character in their bond, right? हमने एनामलस बिहेवियर पढ़ना है लिथियम का एस ब्लॉक का, वहां आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे. फाइन. हमारे पास जो आयनिक बॉन्ड बना है जो हमारा हाइड्राइड बना है यहाँ पर बच्चे वो सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. इट इज crystalline, it is non-volatile in nature. Fine.
जब मोल्टन स्टेट के अंदर हमारा कंपाउंड आता है, हाइड्राइड आ रहा है, तो क्या होगा? आयंस में डिसोशिएट हो जाएगा मॉलिक्यूल। आयंस में डिसोशिएट होएगा तो वी विल गेट चार्ज पार्टिकल्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। Hence, in the molten state, we can say that these hydrides conduct electricity. Fine, note it down. Okay, now moving to next, these are the covalent or molecular hydrides. These are formed with the elements of P block. Fine, they have low boiling points. Okay, now these are further divided into three classes. The very first is electron deficient, second is electron precise, and the third one is electron rich covalent hydride. Fine. 18th group elements are noble gases. They will not form hydride here. Fine. G13. I have written G13 over here. This is what beta G. This is group 13 elements will form electron deficient compound. Now group 13 में हमारे पास है boron. For example BF3. BF3 जो हमारा बनता है, that we get BF3. B के पास जो हमारे 3 bonds बन रहे हैं फ्लोरीन के साथ, उसके पास after sharing the 3 electrons from fluorine, the octet is incomplete. Fine. Mean to say, boron के 8 electrons complete नहीं होते बाहर, octet rule follow नहीं करता, ये deficient है, तो this means what? It is a Lewis acid. And it can easily accept what? The pair of electrons. Fine. The next is B2H6 जो एक डाइमर है. किसका डाइमर है? BH3 का, जिसको हम डाइबोरेन बोलते हैं. एल्यूमिनियम AlCl3 जिसको हम AlH3 जिसको हम as a dimer ही स्टडी करते हैं. Why? Because they are electron deficient और वो डाइमर बनाते हैं, एग्जिस्ट करते हैं. राइट. तो ये मैं BF3 का आपको एग्जांपल दे रही हूँ. वी आर डूइंग हाइड्राइड्स, so here we have to do BH3. The next is electron precise. राइट. इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. प्रिसाइज क्या होता है? एग्जैक्ट, जिसका ऑक्टेट पूरा होगा. कार्बन के पास 4 बॉन्ड है. ईच बॉन्ड इज occupied by hydrogen and they have the octet rule. They have the tetrahedral geometry, exact geometry. Fine. The next comes the electron rich. In some cases where group 15, 16 and 17 elements, when hydrides get formed, they have lone pair. Lone pair makes them Lewis spaces and hence they can easily donate the electron pair to the other molecules, to the electron deficient molecules. Fine. So these are the covalent hydrides. Next to it are the metallic or interstitial hydride. Interstitial hydride में 6 to 9th जो हमारे ग्रुप्स हैं, they do not form any kind of hydrides. They are reluctant. वो hydrides बनाएंगे ही नहीं. Only chromium hydride is one जो 6 to 9 के बीच में बनता है. Fine. The next I want to tell you is palladium, platinum and nickel. Right. हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोजनेशन करते हैं. वह हम कुछ कैटलिस्ट लेते हैं जो हाइड्रोजन को बहुत अच्छे एब्जॉर्ब कर लेते हैं. एंड दीज कैटलिस्ट आर निकल, प्लैटिनम एंड प्लैटिनम. यहाँ क्या होता है? द एक्चुअल इंटरस्टिशियल साइट्स जो इनके एटम्स के बीच में है, वो हाइड्रोजन को, हाइड्राइड्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. राइट. So they are very good absorbers and are used as catalyst for the hydrogenation. अब हमारे पास exact number of interstitial sites को हम occupy नहीं कर सकते. There will be some stoichiometric difference, so they are non-stoichiometric in nature. Hence, they have the fractional hydride forms.
राइट. फॉर एग्जाम्पल टाइटेनियम के साथ यू कैन सी हाइड्राइड इज 1.73, लैम्पनम के साथ 2.8. Fine. So they are not exact. They can be in fraction hydrides. Fine. These hydrides have metallic lock. Metallic lock का क्या मतलब है कि वो जो है वो metal side पे ही है लेकिन वो hard bound है वहाँ पर, and their properties are related to the parent metal only. Fine. They are strong reducing agent in most of the cases, and also free hydrogen atom in मेटललेस टेस्ट जो है वो होता है, इसीलिए वो हाइड्रोजन बहुत इजीली दे सकते हैं. दिस इज द डिटेल. फाइन. मूविंग टू नेक्स्ट. हियर वी गो विद द वाटर. हम सबको पता है देयर इज नो लाइफ विदाउट वाटर. सबसे पहला हम लोग यही वाला फॉर्मूला पढ़ते हैं, H2O, where 1 atom of oxygen, 2 atoms of hydrogen, 1 mole of water. Remember 9th में पढ़ा था हमने. फाइन. हमें पता है वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइफ इज ड्यू टू वाटर. इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, कलरलेस, टेस्टलेस, वी नो एवरी प्रॉपर्टी लाइक दिस. फाइन. अब हम इसके आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं. हम ये देखते हैं कि जो H2O वाटर है उसके पास H2S, H2SE, ये इसी के ग्रुप के अंदर, ऑक्सीजन के ग्रुप में ही ये वाले एलिमेंट्स हैं. बट द हाइड्राइड्स ऑफ दी 16 ग्रुप एलिमेंट जो है, ऑक्सीजन इज 16 ग्रुप एलिमेंट, ये इनके अंदर ये डिफरेंस है कि ऑक्सीजन जब का हाइड्राइड है H2O, दैट इज अ लिक्विड and H2S is a gas. Now why this is so? This is so because of the presence of hydrogen bond. अब हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड है जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सी स्पीशीज होती है? जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचती है. द इलेक्ट्रोनेगेटिव जो स्पीशीज है वो दूसरे मॉलिक्यूल के या सेम मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखती है. बिकॉज इट इज विद द हाइड्रोजन एंड द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं. इट इज नॉट एग्जैक्टली अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इट इज जस्ट अ फोर्स, इट इज अट्रैक्शन. फाइन. तो हम यहाँ पर सबसे पहले करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर. यहाँ पर ऑक्सीजन आपको दिख रहा है सबको बच्चों को. फाइन. कहाँ है ऑक्सीजन? यस, हियर इट इज. दिस इज ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के दो लोन पेयर हैं, 1 and 2. These are non-bonding and these two are the OH-OH bonds. The bond angle of water is 104.5 degree. ये टेट्राहेड्रल से कम होता है. Why? हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी लेसन 4 में, हम ये बहुत अच्छे से क्लियरली करके हैं. फाइन. बिल्कुल उसी के अंदर मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होगी? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ द अदर मॉलिक्यूल. फाइन. उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक्स्ट्रा बॉन्डिंग है H2O में एज कंपेयर टू H2S, और उसको लिक्विड बनाते हैं. फाइन. नाउ मूविंग टू द सेकेंड स्ट्रक्चर, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइस. देखो बेटा जी, फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखें आप पहले, दिस इज O, H एंड H, H2O है. जो ये डॉटेड दिख रही है, ये वाली डॉटेड, ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड. राइट. जो वाटर है उसके अंदर सिंपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं और वाटर मॉलिक्यूल इजीली एक दूसरे के अंदर बहुत अच्छे से फिटेड है. फाइन. While in case of ice, जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, देखो आप, इसने क्या बनाया? हेक्सागन स्ट्रक्चर बनाया, जिसमें ये वाली जो स्पेस है, दिस इज वेकेंट. Mean to say, number of molecules of water will be the same, but in the same volume, the mass, the number of molecules जो हैं आइस के अंदर स्पेस छोड़ रहे हैं, तो डेंसिटी उनकी कम हो गई. एंड इन केस ऑफ वाटर, डेंसिटी उसकी ज्यादा हो गई. वाई? बिकॉज वहां कोई फ्री स्पेस नहीं है. लुक,
देयर इज नो फ्री स्पेस, ये लोग एक दूसरे के अंदर फिटेड है, घुस रहे हैं अंदर, है ना। और यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर हमारे पास बीच में स्पेस है, तो ये वाइड स्प्रेड में आ गई आइस। दिस इज वाई इसकी डेंसिटी उसी वॉल्यूम के लिए क्या होगी, कम हो जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो हल्का होता है, तो ice will float over the water. This is the reason why जो polar areas हैं, polar area सुने हैं ना, कहाँ, जहाँ पर पानी के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है और वहां पर भी क्या रहते हैं, सील रहते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स जिंदा रहते हैं। वाई, हाउ, कि आइस जो है वाटर के ऊपर फ्लोट कर देती है और उसके नीचे जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है एंड द एक्वाटिक लाइफ फ्लोरिश इजीली। फाइन, द नेक्स्ट थिंग इज आई कैन आस्क यू ए क्वेश्चन, आप इसको फाइंड आउट करेंगे। एक ग्लास है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर एंड आइस इन इट, when the ice melts, जब आइस मेल्ट हो जाएगी, the level of water will decrease or increase. I expect कि आप लोग इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, this is based on this topic only. Okay? Next we have to do the chemical properties of water. The chemical properties of water are, it is amphoteric in nature. Amphoteric means it can act as acid as well as it can act as base. The second is redox reactions involving water, where it can be easily reduced to hydrogen and due to the reactivity with the highly electropositive metals. Fine. The next is, ये हम लोग 10th में कर चुके हैं बेटा, आई थिंक होपफुली आपको याद हो, हम लोगों ने डिफरेंट मेटल की सीरीज की थी, वाटर के साथ रिएक्टिविटी की थी। कोई जैसे गोल्ड है, इट डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, जिंक रिएक्ट विद हॉट वाटर एंड सोडियम, राइट, याद आया, it is the same thing I want to tell you. Hydrolysis reaction, hydrolysis reaction is due to high dielectric constant, यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग टेंडेंसी है, तो क्या होता है, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स में ये डिसॉल्व कर जाती है, कुछ इसकी हाइड्रोजन की हाइड्रोलिसिस पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है, कुछ कोवलेंट के साथ कम करती है और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के साथ, अदरवाइज इट गो विद आयनिक कंपाउंड्स। वाई, अभी मैंने आपको बताया था कि जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो थोड़ा सा पोलर नेगेटिव है, हाइड्रोजन इज पोलर पॉजिटिव, तो वो समवॉट आयनिक को अपने साथ डिसॉल्व कर देता है। हाइड्रेट्स फॉर्मेशन, हाइड्रेट फॉर्मेशन के अंदर आई वांट टू टेल यू बेटा, इसके अंदर हम लोग करते थे क्रिस्टलाइजेशन का वाटर। फाइन, तो सिंपल वही बात बोल रही हूँ मैं, कॉपर सल्फेट के साथ जब हमारा क्रिस्टलाइजेशन वाटर 5H2O है, तो वो एक क्रिस्टल देता है, ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल, और जिस वजह से वो पूरा अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। दीज आर सम ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फाइन, मूविंग टू नेक्स्ट, सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। नाउ व्हाट इज सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर? बेटा जी, सॉफ्ट वाटर इज द वन वेयर देयर इज नो minerals like calcium and magnesium salts. Fine. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टेल यू कि रेन वाटर जो होता है दैट इज अ प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, उसमें कोई आयन नहीं होते। अरे, जो हमारे एटमोस्फेयर के अंदर रेन टाइम में आयन्स होते हैं वो हमारे डाउन टू द ग्राउंड आ जाते हैं, इसलिए वो इम्प्योर वाटर होता है, बट एक्चुअली द रेन वाटर इज without any ions and it is simply a soft water kind. Fine. When calcium and magnesium salts जो है वो mix होते हैं water में, वो क्या बनाता है हमारा hard water. Mean to say, we can say that hard water is what? Hard water is a mixture of calcium and magnesium salts of bicarbonates, chlorides or sulfides. Now there is one more thing I want to tell you कि हमारे पास जो हार्डनेस है वाटर की, तो वो दो टाइप की हो जाएगी। कैसे? एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। वाटर हार्ड टू काइंड का होगा, एक टेम्परेरी हार्डनेस होगी, एक परमानेंट हार्डनेस होगी। हमें अगर वो कंज्यूम करना है, वाटर यूज करना है, तो वी हैव टू रिमूव इट। फाइन, बट यहाँ व्हाट इज टेम्परेरी हार्डनेस एंड व्हाट इज द परमानेंट हार्डनेस? जिस हार्ड वाटर में बाइकार्बोनेट्स के सॉल्ट होंगे,
कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंड आयरन, वो हमारा टेम्परेरी हार्ड वाटर होगा और उस हार्डनेस को हम कैसे रिमूव करेंगे? बॉइलिंग और बाय क्लार्क्स मेथड. फाइन. The second type is permanent hardness. Permanent hardness के अंदर we will have the salts of sulfate and chloride ions, right? So these are very hardly bounded with the they are hardly mixed with the water and hence making it permanently hard water. So this hardness we can remove by using washing soda, Calgon's method, ion exchange method and synthetic resin method. Let's see what are these. The removal of temporary hardness is by boiling and by Clark's method. Boiling means simple हमने डाला किसी भी बर्तन में और उसको बॉईल किया. आपने देखा होगा बॉईल करते रहते हैं. So what happens? जो हमारा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट है they become solid and they settle down. और फिर हम उसको easily filter करके remove कर सकते हैं. Right? This is simple boiling. Clark's method में what we do? In the Clark's method हम lime water को add करते हैं hard water में. So what happens? What happens? जो हमारे पास कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट है, कौन सा? बाइकार्बोनेट, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इट्स हाइड्रोक्साइड में, जो कि प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है एंड वी कैन इजीली remove it through filtration. Fine. These are the simple temporary hardness को remove करने के लिए. Okay. Now for the permanent hardness. Permanent hardness के अंदर जो क्लोराइड और सल्फेट है वो remove करना है. इनको हम अगर कार्बोनेट के अंदर चेंज कर दें तो क्या होगा? वो सेटल डाउन हो जाएगा into the hard substance and we can easily remove it. Fine. The reaction is showing you the same. I have given the reaction. This is showing you the same. क्लोराइड एंड सल्फेट को हमने चेंज कर दिया है और जो मेटल कार्बोनेट्स हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं एंड वी कैन इजीली remove the insoluble carbonates. Then comes the Calgon's method. In the Calgon's method, we have sodium hexametaphosphate. राइट इसको हम कैल्विन कहते हैं. जब हम इसको हार्ड वाटर में ऐड करते हैं बेटा, इट विल गिव अ कॉम्प्लेक्स दैट इज Na4P6O18, राइट. और ये हमारा किसके साथ लिंक हो जाएगा? ईदर ऑफ द आयंस के साथ, कैल्शियम या मैग्नीशियम से, जो कि हम इजीली फिर उसको रिमूव करेंगे. द नेक्स्ट कम्स इज द आयन एक्सचेंज मेथड. आयन मींस जो हमारे पास आयन है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. What we do? We use zeolite. Zeolite is sodium, aluminium, silicate. Now in here क्या होता है? यहाँ पर जो सोडियम है बेटा जी, वो हमारा रिप्लेस हो जाता है मैग्नीशियम से एंड दिस जियोलाइट, दिस इज नोन एज जियोलाइट. द जियोलाइट है वो आयन एक्सचेंज में हेल्प करता है एंड दिस इज द प्रोसेस. जहाँ हार्ड वाटर हम डाल रहे हैं, वेस्ट वाटर नीचे से रिमूव आउट हो जाएगा और जो हमारा सॉफ्ट वाटर है वो थ्रू द जियोलाइट, ये हमारा जियोलाइट एरिया है, ये वाला जियोलाइट ये ऊपर जाएगा एंड सॉफ्ट वाटर विल बी इजीली रिमूव. हम यहाँ पर ब्राइन यूज करते हैं. ब्राइन इज NaCl सॉल्यूशन. इसलिए यूज करते हैं जो हमारा जियोलाइट यूज हो रहा है, जो यहाँ जियोलाइट यूज हो रहा है वो वापस से regenerate हो जाए and we get the soft water in continuation. Fine. हमारे पास नेक्स्ट एक मेथड है जो कि एक ऑर्गेनिक मेथड है जिसको हम बोलते हैं सिंथेटिक रेजिन मेथड. आयन एक्सचेंज हमें पता है, हमने यहाँ पर केटायंस को एक्सचेंज किया, बट कॉन्टिन्यूसली जब हम ऐसे ही एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर हमें H प्लस आयंस मिलते हैं. कैसे? यहाँ देखो ये H प्लस है, RSO3 माइनस को हम रिमूव कर देंगे RNA में, राइट. यहाँ पर क्या होगा हमारे पास बच्चे? यहाँ पर हमारे को H प्लस जो आयंस है वो उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी. जब H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी कैटायन एक्सचेंज में तो वाटर एसिडिक हो सकता है. तो इस कैटायन एक्सचेंज को हम आगे फॉलो करते हैं एनायन एक्सचेंज से एंड वी विल गेट व्हाट? न्यूट्रल वाटर. वहां हम OH माइनस को चेंज करेंगे एंड देयर विल बी हैव न्यूट्रल
deionized water. Next comes the heavy water. Now what is heavy water? Heavy means भारी, right? यहाँ क्या है? We know hydrogen, deuterium and tritium. These three are the isotopes of hydrogen, fine. H2O is the very first isotope and the second is D2O, deuterium oxide. Okay. Reactions all सेम है इसकी, बिल्कुल वाटर जैसी, पर थोड़ा सा हेवी है. Why? Because इसके न्यूक्लियस में हमारे पास न्यूट्रॉन है. ये थोड़ा सा हेवी है हाइड्रोजन से, तो रिएक्शन थोड़ी स्लो होगी. फाइन. द वेरी फर्स्ट थिंग कि क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज होता है, हमारे को क्या जरूरत है. इट इज यूज्ड एज अ मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर. न्यूक्लियर रिएक्टर्स आई थिंक यू नो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, हम पावर एनर्जी लेते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर से. वी यूज हेवी वाटर देयर, राइट. इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय electrolysis of water, exhaustive electrolysis of water, and it is also formed by byproduct in the fertilizers. Right? The next is hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide is H2O. यहाँ पर हम स्ट्रक्चर जब देखें तो आप देखेंगे बच्चे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन की कोई बॉन्डिंग नहीं है आपस में. There are two kinds of structure H2O2 gives. One is in gaseous phase and the other is in solid phase. Fine. Gaseous phase के अंदर बेटा you see कि जो हमारा bond angle है that is 94.8 and in solid phase it is 101.9. Right? यहाँ पर जो हमारा स्ट्रक्चर है इट इज एक्जेक्टली जैसे आपने लैपटॉप ओपन कर रखा है. फाइन. तो जो हमारा सरफेस के बीच में बॉन्ड है वो चेंज होता है दैट फ्रॉम 111 टू 90 इन सॉलिड स्टेट्स. फाइन. गैसियस फेज में पूरा ब्रॉड ओपन होता है, बट इन केस ऑफ सॉलिड वो थोड़ा सा एक्यूट मतलब राइट एंगल अराउंड आ जाता है. फाइन. सो हियर व्हाट विल डू, we will take its preparation. Preparation में बेटा जी we have with the barium peroxide, जब हम उसको acidify करेंगे एसिड के साथ we'll get H2O2. The next commercially it is prepared by you see HSO4 minus it by the electrolysis of 30% ice cold sulfuric acid. इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद we will get what, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बाइंडिंग हो गई, बॉन्ड बन गया. here what we'll have, we have peroxo disulfate. peroxo disulfate के हाइड्रोलिसिस से we will get what, we will get our hydrogen peroxide. Fine. Now the hydrogen peroxide act as both oxidizing as well as reducing agent in both acidic and alkaline medium. So these are few of the reactions I want to show you. PBS को peroxide ने क्या किया है, यहाँ पर oxidize किया है. You see how come it is oxidizing? Yes, PBS से PBSO4 ऑक्सीजन मिला इसको. The next is what we have Ki2 iodide, ये भी ऑक्सीडेशन है. Ki की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट थी और यहाँ क्या हो गई है 0. यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई ना, वेरी नाइस. नाउ ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइड्स टू नाइट्रोजन. फाइन. यहाँ पर क्या हुई है हमारी, कहाँ पे हो गई बेटा जी, ओह आई एम सो सॉरी. यहाँ पर क्या हुआ हमारे पास, जो NaNO2 है NO3 के अंदर कन्वर्ट हो गया. राइट. लाइकवाइज यू सी जब हम रिड्यूस करेंगे तो ओजोन हमारी रिड्यूस होके O2 के अंदर कन्वर्ट हो गई है. राइट. These are few of the reactions. You can note it down and learn it likewise. Fine. H2O2 decomposes slowly on the exposure to light. लाइट एक्सपोजर में ही डिकम्पोज हो जाती है. ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बहुत जल्दी ब्रेक करता है. वाटर के साथ ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा और वाटर और नेसेंट ऑक्सीजन दे देगा और फटाफट डिकम्पोज हो जाएगा. राइट. तो दिस इज द रीजन वी पुट इट इन डार्क वेसल्स.
यूरिया भी कभी कभी एज हम स्टेबलाइजर इसको ऐड करते हैं. इट इज ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम द डस्ट बिकॉज डस्ट इंड्यूस एक्सप्लोसिव डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड. तो हमारे को वेरी पर्टिकुलर होना पड़ता है to keep the peroxide, right? Now its uses, some of the uses we will see. It is used as hair bleach. जो गोल्ड हमारे कलर है हेयर का वो रिमूव करने के लिए we use peroxide, right? डिसइंफेक्टेंट है, एंटीसेप्टिक है, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स में यूज होता है, फॉर हाई क्वालिटी ऑफ डिटर्जेंट्स के लिए यूज होता है, हाइड्रोक्विनोन के लिए यूज हो रहा है. हाइड्रोक्विनोन इज व्हाट? Yes, medicine. Pharmaceuticals के अंदर, right? I have written over there. Industries के अंदर bleaching agent use होता है for textile. जो हमारा cotton है, paper pulp है, वो white कैसे होता है? White होता है peroxide से. It is also used as an agent in green chemistry. Green chemistry means जो pollution ना करे, pollution control करे, fine. तो we use it for the oxidation of cyanides, restoration of aerobic conditions to sewage waste, fine. Next is hydrogen gas as a fuel. Hydrogen gas as a fuel, हम hydrogen पढ़ चुके हैं already बेटा जी, इससे पहले वाले पार्ट में. हाइड्रोजन एज अ फ्यूल हमारे लिए क्यों यूजफुल है? सबसे पहले ये बहुत एनर्जी देता है, इसकी स्पेसिफिक काफी गुड हमारा फ्यूल हो सकता है. नॉन पोल्यूटेंट है, क्लियर गैस है, नो एनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट इज गिवन, अबंडेंटली अवेलेबल है. हाइड्रोजन यूनिवर्स में एक्सीलेंट रिड्यूसिंग एजेंट है. हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट है, फाइन. बट व्हाई वी डोंट यूज इट? So it must be having some disadvantages. There are certain disadvantages. The very important and significant is it is highly inflammable. तो इसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम है. इसको स्टोर करने के लिए हम लोगों को बहुत बड़े बड़े स्टोरेज अप्लायंस चाहिए, राइट? अदरवाइज इट विल बी बूम. इनके सिलेंडर्स जो हैं, जो कंप्रेस्ड हाइड्रोजन को मूव करते हैं, दे आर अबाउट 30 times much higher in weight as compared to petrol. इतने हैवी सिलेंडर को मूव नहीं कर सकते. So what we'll do, we will break it into small containers. Break it mean to say हम क्या करेंगे, बड़े सिलेंडर को नहीं ले जा सकते तो छोटे को लेके जाएंगे, right? It will be hurdle in a transportation. Okay. उसके बाद इसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 20K, राइट? वहां तक हमारे को क्या करना पड़ता है? कूल करना पड़ता है, फाइन. सो इट इज एक्सपेंसिवली इंसुलेटेड, टैंक्स के अंदर रखना पड़ता है और वो फिर से हमारे लिए मुश्किल है, फाइन. हेंस हम इसको कंक्लूड कर सकते हैं कैसे कि जो हाइड्रोजन इकोनॉमी है, हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब क्या है बेटा जी? हाइड्रोजन एज अ फ्यूल यूज करने की जो हमारी टेक्निक है उसको हम अभी हॉल्ट पे रखे हुए हैं. व्हाई? बिकॉज ऑफ द transportation and storage challenge. Fine. Now moving to the assignment. Note the questions. I hope you can do all the questions. All the best. Please note it down. These are very easy and you have done it just with me now. Okay. Thank you.